And the fact that we have English is now becoming a huge strategic asset. China is struggling against another handicap. The urgent need to learn English, today's global language. And that's the first time I've really changed my work focus since I was age 17. And Paul Allen and I decided that starting Microsoft would be a great thing, and in fact interrupted my college studies at that time. I haven't resumed them, don't know when I might. Although with all these online courses now, you could say that I'm sort of back to college because I'm a great consumer of online courseware. My name is Ravi. Questo paone muy bonito, vale más caro, 50 rupias. Questo muy bonito. Compra este paone no mucho caro, €1, $1. Chinese ni hao ma, ike pongso ma, wusho rupi. Japanese ko Japanese ko not takai, Korean gochu rupi ne ko nichi doru ne. Russian ni khachu, ni nuzna, iskolka. $1 pisa rupli. China is struggling against another handicap. The urgent need to learn English, today's global language. The method may seem bizarre, but it's hard not to admire the sense of a whole nation slogging to get to the top of the world. 我们觉得英文能力对这个 At the moment, English plays an important part in China's economic prosperity. It is the basic tool for international communication. As we improve our English skills, China will be able to interact with the rest of the world even more. And that's the first time I've really changed my work focus since I was age 17. And Paul Allen and I decided that starting Microsoft would be a great thing, and in fact interrupted my college studies at that time. I haven't resumed them, don't know when I might. Although with all these online courses now, you could say that I'm sort of back to college because I'm a great consumer of online courseware. My name is Ravi. Questo paone muy bonito, vale más caro, 50 rupias. Questo muy bonito. Compra este paone no mucho caro, €1, $1. Chinese ni hao ma, ike pongso ma, wusho rupi. Japanese ko Japanese ko not takai, Korean gochu rupi ne ko nichi doru ne. Russian ni khachu, ni nuzna, iskolka. $1 pisa rupli Pauli Maulin Thorosho. French, bondu so so rupli pos la second pis line euro. And Germany bunga participation point fee 9.5% kunci rupli $9 1 euro. And Arbi, baba kali house ar jen namuna, ar house ada 50 rupees, ar kabi ada telak ni 50, ar house, ar ari distri. Nirani 100 rupees, 60 rupees, ni 3 100. And Israel ada khamut, 5 channel commission rupees, ar kuba English. Hello sir, you want walking Indian air condition? Indian price only 50 rupees. You like you take your daughter, mama give present. How many pounds? Only $1, £1. £1, still £1. £1, 80 rupees. Wow, it's only gone up by what's the inflation? Two piece, £1. 2 piece, £1. Yes. So this is a better deal than 3 years ago. Yes. The Uniform Code of Military Justice stipulates that any officer who sends a soldier into battle without a weapon should be court-martialed. And if there were a Uniform Code of Academic Justice, it would stipulate that any professor who sends a student into life without some speaking capability should also be severely punished. What do you reckon the best way to learn a language? What do you think there?
best thing you can do to learn languages? I think the main thing is students have to study. They have to dedicate some time to go into a class or having a teacher or something, and besides that, just study. 2 or 3 hours a week. There's definitely a relationship between the amount of time you put in and what you learn. To be honest, I disagree. I think that the most important approach is, of course, the amount of time you put in, but I would say that studying would be less effective than beginning initially with the language as it is naturally used. Listen to it as frequently as you can and speak it. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्लास में। और आज की हमारी लिसनिंग क्लास में एक बहुत कॉमन, आपकी जानी मानी चीज़ के बारे में हम फिल्म लेके आए हैं। और फिल्म बहुत डिटेल में है और बहुत सारे पहलू हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेट इंडियन रेलवेज। बहुत ज़बरदस्त डिपार्टमेंट है ये। हमारे लिए कुछ लगता नहीं है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा ऊपर जाकर ओवरव्यू से अगर देखें हम इंडियन रेलवेज को, तो बड़ा जबरदस्त मैसिव काम है दोस्तों। तो एक जबरदस्त फिल्म आपको दिखाने जा रहा हूं, उसका एक पहला पार्ट है आज। और देखिए उसको जरा ध्यान से। इट्स नॉट ओनली द फिल्म, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है हमारे कंट्री के बारे में, हमारी रेलवेज के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में, और साथ में यू आर लर्निंग गुड इंग्लिश। तो एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं, तो तैयार है शिकार करने को? ओके। तो एज यूजुअल हम पहले आपको क्वेश्चंस देंगे और उसके बाद 2 बार फिल्म दिखाएंगे और फिर एक्सपेक्ट करेंगे आपसे कि सब क्वेश्चंस के जवाब आप बिल्कुल ठीक ठीक दे दें। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। When did the whistle of a steam locomotive first blow in India? Question mark. Number 2, before the stations were built, comma, at many places where did the train stop? Question mark. अब द ग्रेट इंडियन रेलवेज पर एक जबरदस्त फिल्म दिखाते हैं आपको। उसका आज पहला पार्ट है, ध्यान से देखिए और सब क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ लीजिए। ठीक है ना? ऑल द बेस्ट टू यू। India is a land of dreams, where images, however fleeting, are remembered long after the journey's end. The railway is her lifeline, crossing not only distances, but bridging the boundaries of her many cultures. For over 900 million people, the railway has become a great unifier. Over 1.5 million must work to keep it going. The Great Indian Railway touches the lives of everyone.
For nothing is more a part of this country than the trains which are part of its soul. आज आपका स्वागत है इस क्लास में। यू आर मोस्ट वेलकम। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो पहला कल का दिन था, आपने वो सब काम पूरे किए, जो इंग्लिश ड्रिबल, इंग्लिश चैंटिंग, इंग्लिश वॉक और इंग्लिश न्यूज़पेपर और इंग्लिश में जो आपने सुनना था, आपको 15 मिनट न्यूज़ वो आपने सुनी होगी। दोस्तों, इन एक्टिविटीज़ को आप जरूर कंटिन्यू करें और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ दिन जब कर लेंगे तो आपको अपने आप इसमें बहुत मजा आने लगेगा और आप इसको एंजॉय करेंगे। इसके अलावा आप बहुत तेजी से अपने चारों ओर, आपको पता नहीं लग रहा लेकिन ये हो रहा है कि आप अपने दिमाग में चारों ओर इंग्लिश का एटमॉस्फेयर बनाते चले जा रहे हैं अननोइंगली। आपको पता नहीं है क्या इंपैक्ट हो रहा है इसका, बट दैट इंपैक्ट इज वर्किंग राउंड द क्लॉक। सिर्फ आपको जो मैं कहता हूं वो करते जाइए और उसमें इंटरेस्ट दीजिए और उसको हर रोज करें और समय बढ़ाएं उसको। जरा समय बढ़ाएंगे, जितना समय आप उसके साथ रहेंगे उतना ही तेजी से फायदा होगा। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं जहां हम बात कर रहे हैं आर्टिकल्स की, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत आसान जो एक चीज है वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आप जानते हैं कि दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं, एक इंडेफिनेट और डेफिनेट। इंडेफिनेट में ए और एन है और डेफिनेट में दी है। अब ये जो आर्टिकल्स हैं इसके ऊपर मैं आपको एक एक्सरसाइज करा रहा हूं, जो कि आप उस एक्सरसाइज को अगर पूरा समझेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए आर्टिकल को समझना, उसको यूज करना। और एक बार जब एक्सरसाइज कर लेंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। इनफैक्ट यू नो ऑल दिस। मैं चाहता हूं कि एक बार रिपीट हो जाए ताकि कोई भूल चूक भी हो गई हो तो हमें वापस याद आ जाए सब चीजें। तो इस लिए हम ये एक्सरसाइज कर लेते हैं और एक्सरसाइज के बाद में आप देखें कि वापस जो आपको रिवाइज करने की बातें हैं, इट हैज कम बैक टू योर माइंड। ओके, आर्टिकल्स जैसे बताया था मैंने आपको दो तरह के होते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट। इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं ए और एन और डेफिनेट आर्टिकल होते हैं द। इनमें हम फर्क समझें। जो इंडेफिनिट आर्टिकल है वो ए और एन है। ए काम में लिया जाता है कॉन्सोनेंट से पहले। कॉन्सोनेंट्स मतलब जो वॉवल नहीं है, 21 जो अल्फाबेट्स हैं जो वॉवल नहीं है वो सब कॉन्सोनेंट्स हैं। चलिए देखते हैं फिल्म और समझते हैं अच्छी तरह से हाउ टू यूज द आर्टिकल्स। देयर इज ए ब्यूटिफुल चर्च। तो दोस्तों इस सेंटेंस में देखें आप, एक चर्च का होना बताया जा रहा है और उसके लिए हम वहां यूज करते हैं देयर इज ए ब्यूटिफुल चर्च। अब ए ब्यूटिफुल चर्च क्यों? बिकॉज ए जो है, बहुत सारे चर्च हैं लेकिन उसमें से किसी एक चर्च की बात कर रहे हैं अपन, किसी खास चर्च की बात नहीं कर रहे, इसलिए जो आर्टिकल है वो ए यूज हो रहा है। अब ब्यूटिफुल क्या कर रहा है? ब्यूटिफुल जो है वो वर्ड है एडजेक्टिव, वो चर्च के बारे में बता रहा है कि चर्च कैसा है। तो ब्यूटिफुल चर्च। अब हम ये भी बोल सकते थे कि देयर इज ए चर्च, लेकिन चूंकि हम उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताना चाह रहे हैं, किस तरह का चर्च है वो, तो हम एडजेक्टिव यूज करते हैं ब्यूटिफुल। तो इस तरह से सेंटेंस बना, देयर इज ए ब्यूटिफुल चर्च। अब
इज जो है वो एक वर्ब है। वर्ब कौन से वर्ब का भाग है ये है टू बी से निकला है, और ये काम में लिया जाता है थर्ड पर्सन सिंगुलर में, ही शी इट इज के साथ में, इसलिए सेंटेंस बना देयर इज ए ब्यूटिफुल चर्च। चलिए आगे चलते हैं। ए ग्रे कार स्टॉप्स आउटसाइड द चर्च। अब कोई एक ग्रे कार हम जानते नहीं उस कार को, उसके बारे में हमें पता नहीं है, एक कोई कार आई और उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए ए ग्रे कार, इसका इनडेफिनिट आर्टिकल हम यूज कर रहे हैं। ए ग्रे कार क्या कर रही है, वो यहां वर्ब आता है स्टॉप्स। तो देखिए ए ग्रे कार तो है सब्जेक्ट, स्टॉप्स वर्ब, कहां, इट स्टॉप्स आउटसाइड, मतलब बाहर, किसके बाहर, द चर्च। तो अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है। जितने भी एक्टिव सेंटेंसेस हैं उनका फॉर्मेशन होता है कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और उसके आगे के बाद जो बात हो रही है वो बात हम कहते हैं। ए वेटर कम्स एट द टेबल। अब इस रेस्टोरेंट में बहुत सारे वेटर हैं, उनमें से एक, तो इसलिए इनडेफिनिट आर्टिकल पता नहीं, पक्का नहीं है, वो एक वेटर आया, उसमें से कम्स आया, आना उसका, एट द टेबल, टेबल पर। अब ये ऑन द टेबल नहीं होगा, एट द टेबल। देखिए प्रेपोजिशन भी आप नोट करते चले जाएं, एट द टेबल, और द क्यों आया, बिकॉज इस टेबल के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ए वेटर कम्स एट द टेबल। कैटरीना इज प्लेसिंग एन ऑर्डर टू द वेटर। फिर कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कैटरीना इज प्लेसिंग, कैटरीना प्लेस कर रही है, देना, प्लेस करना तो देना, क्या चीज, एन ऑर्डर। एन क्यों, बिकॉज जो अगला वर्ड है वो उसकी बिगिनिंग हो रही है, शुरुआत हो रही है वॉवल से, वॉवल क्या है, ओ, तो इसलिए एन लग गया। कैटरीना इज प्लेसिंग एन ऑर्डर टू, प्रेपोजिशन, को, उसको, किसको, द वेटर। अब वेटर वही वेटर है जो पहले हम देख चुके हैं, इससे बात कर चुके हैं, द वेटर। इंडेफिनिट की जगह डेफिनेट आर्टिकल लग गया, द वेटर। वह बिस्तर पर अंगड़ाई ले रहा है, इसका इंग्लिश रूप आएगा, ही इज ट्विस्टिंग हिज बॉडी इन द बेड। He is twisting his body in the bed. सेंटेंस नंबर 3 लीजिए, हिंदी में था वह दांत साफ कर रहा है, इसका इंग्लिश होगा he is brushing his teeth. I'll repeat, he is brushing his teeth. सेंटेंस नंबर 4 देखिए, हिंदी में है वह WC पर बैठा हुआ है, इसका इंग्लिश में होगा he is sitting on the WC. I'll repeat, he is sitting on the WC. Example number 1. I work with you. Full stop. I'll repeat. Number 1. I work with you. With को अंडरलाइन कर लीजिए इसमें. Number 2. I work for you. Full stop. इसमें for को अंडरलाइन कर लीजिए. I'll repeat. Number 2. I work for you. For को अंडरलाइन कर लीजिए. Number 3. I work against you. Full stop. Against को अंडरलाइन कर लीजिए इसमें. I'll repeat. Number 3. I work against you. Against को अंडरलाइन कर लीजिए. They are running in the garden. Sadhana comes on the diving board and jumps into the pool. साधना आती है, comes on the diving board, डाइविंग जो जहां से डाइव करते हैं, डाइविंग बोर्ड, एंड जंप्स
into the pool. Because into क्यों आया? Jumps into. Because motion जब आता है तब हम कहते हैं जब मोशन में किसी चीज में आप कूदते हैं तो into लगाते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको नोट कर लें. into कहां लगता है? जब मोशन में हम किसी चीज में अंदर कूद रहे हैं तो into is used. She is swimming in the pool. वो एक पूल में तैर रही है. The three cases are the subjective case, the objective case, and the possessive case. Let's take a moment to look at each of these cases and explain exactly how and when they should be used in an English sentence. पहली लाइन में आप लिखिए subject pronouns. मैं रिपीट करता हूं, subject pronouns. जैसा आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा है, उसके नीचे लिखिए object pronouns. I'll repeat this, object pronouns. और थर्ड लाइन में लिखिए possessive adjectives. Although अभी इस क्लास में हम possessive adjectives की बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ मैं आपको आइडिया देने के लिए लिखा रहा हूं. हमारी क्लास का फोकस है अभी subject pronouns और object pronouns. तो आपने ये तीनों लिख लिए हैं, subject pronouns, नीचे लाइन में object pronouns और थर्ड लाइन में possessive adjectives. अब आप subject pronouns के आगे जो पेज खाली है उसको आप 7 हिस्सों में बांट लीजिए. ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए, जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, थोड़ा थोड़ा स्पेस चाहिए. 7 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लीजिए. हो गया ना? चलिए अब इस 7 पार्ट के फर्स्ट पार्ट में आप लिखें सब्जेक्ट प्रोनाउंस के आगे. एक ही लाइन में आपको लिखा रहा हूं मैं पूरा में. आप उसको लिखें आई, दूसरे में यू, फिर शी, फिर ही, फिर इट, फिर वी और लास्ट में दे. तो ये सब सब्जेक्ट प्रोनाउंस हुए. आई, यू, शी, ही, इट, वी, दे. ठीक है ना? अब चलिए नेक्स्ट लाइन चलते हैं. ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस. आई के नीचे लिखिए मी. मैं रिपीट करता हूं, आई के नीचे लिखिए मी और यू के नीचे लिखिए यू. दोनों सेम है रहते हैं, यू और यू. मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, कोई कंफ्यूजन ना रह जाए. सब्जेक्ट प्रोनाउंस को रिपीट करता हूं मैं पहले. आई, यू, शी, ही, इट, वी, दे. और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस में है मी, यू, हर, हिम, इट, अस, देम. और लास्ट है पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, माई, योर, हर, हिज, इट्स, अवर, देयर. चलिए अब हम आगे चलते हैं. ये समझने के बाद में अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि किस तरह से सेंटेंसेस बनते हैं. आई गेव हिम द पेन. अब ये आई गेव हिम द पेन में आई क्या है? ये है सब्जेक्ट प्रोनाउन. गेव क्या है? वर्ब. हिम क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. आई गेव हिम, ऑब्जेक्ट बन गया ये. क्या चीज? पेन, द पेन. तो द क्या है? आर्टिकल. और कौन सा आर्टिकल? डेफिनेट आर्टिकल. और पेन क्या है? नाउन. So please join me in giving a Carnegie Mellon welcome to a visionary computer scientist, a brilliant business leader, the world's leading philanthropist, and a great friend of this university. Ladies and gentlemen, Bill Gates. Thank you. Thank you. Thanks very much. Well, I'm excited to be back here at Carnegie Mellon. The work that's going on here, as you all know very well, is fantastic world-class work. As the president said, Microsoft has been very lucky to hire some brilliant people from the university, and we're continuing that tradition
this year with a great new crop of people who are going to do some amazing work. Some of our top people, including Rick Rashid, who runs Microsoft Research, Harry Shum, who's got the simple job of running the development group that competes with Google Search, and many others have been at Microsoft a long time and already made a huge difference in the work they do. जफर गॉट सो एक्साइटेड, वो बहुत एक्साइटेड हो गया, मतलब बिल्कुल जोश आ गया उसको, दैट ही कुड नॉट स्लीप दैट नाइट. कितना एक्साइटेड हो गया कि वो पूरी रात सो नहीं सका. आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि कल कुछ बहुत जबरदस्त कुछ प्रोग्राम है, आपकी बर्थडे है, बहुत सारे गेस्ट आपके फ्रेंड्स आने वाले हैं और आपके मम्मी पापा आपके लिए बर्थडे मनाने वाले हैं, तो उस एक्साइटमेंट में आपको नींद नहीं आती रात को. ऐसा होता ना, मेरे साथ तो बचपन में होता था भैया, मैं भी सो नहीं पाता था पूरी रात, यू नो. सो सेम जफर बिल्कुल आपकी जिस उम्र का बच्चा था, एंड ही वाज सो एक्साइटेड दैट ही कुड नॉट स्लीप दैट नाइट. वो पूरी रात सो नहीं सका. ठीक है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगले दिन बात करते हैं. अगले दिन की बात करिए. इट वॉज वेरी विंडी द नेक्स्ट डे. इट वॉज, ये पास्ट टेंस था, होना. इसे टू बी का पार्ट है वॉज. टू बी का आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से काम करता है. ये वॉज, एम, इज, आर, वर, ये सब किस तरह से काम करते हैं मैं आपको इसको समझाऊंगा, ताकि आपको एक बार समझाने पर पूरी बात समझ आ जाएगी. ठीक है ना. सो इट वॉज, ऐसा था. क्या? वेरी विंडी. वेरी विंड, विंड मतलब हवा. वेरी विंडी मतलब बहुत हवा चल रही थी. कब? द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन बहुत तेज हवा चल रही थी. इट वॉज वेरी विंडी द नेक्स्ट डे. उस दिन क्या हुआ फिर? somebody, somebody मतलब किसी ने, somebody नाम पता नहीं हमें, knocked at the door. knock मतलब खटखटाया, जैसे आपको दिखा था मैंने. somebody knocked at the door. अब देखिए, knocked at, knock जो है वो at लिखता है, प्रपोजिशन है at. कहां पर? the door मतलब किसी ने दरवाजा खटखटाया. somebody knocked at the door. full stop. आगे देखिए, his mother, फिर वह पॉजिटिव एडजेक्टिव आया. his mother क्या किया उसने? ओपन द डोर, दरवाजा खोला. अब ओपन प्रेजेंट टेंस में है और ओपनड, OPENED, ओपनड पास्ट टेंस में. हिज मदर ओपन द डोर, उन्होंने दरवाजा खोला. हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है. तो चलिए कुछ पढ़ाई कर लें. मूड है ना? ओके, गुड. दोस्तों कुछ अलग तरह की पढ़ाई करें. हमारे पास जो समय है उसको हम 3 हिस्सों में बांटते हैं. पहले हिस्से में मैं आपको 30 क्वेश्चंस दिखा रहा हूं, एक फिल्म दिखाते हुए, और वो लिखने के बाद में मैं आपको कुछ समय दूंगा जिसमें आप वो फिल्म वापस देख सकते हैं. और उसके बाद में इसी क्लास के अंदर जो फिल्म देख रहे हैं, बाद में आप क्वेश्चन लिखने के बाद में, तब तक आपको उसके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको तैयार कर लेने हैं. फिल्म आपके सामने है, क्या हो रहा है दिख रहा है आपको, क्वेश्चंस आपके सामने है, अब उसके आंसर डालने सिर्फ. और बहुत सिंपल है, बिल्कुल बेसिक की बात कर रहा हूं मैं, ताकि आपके पास से कॉन्फिडेंस आए कि अगर कोई प्रश्न करता है कैसे उसको आंसर करना है. ठीक है ना. तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास. मैं आपको 30 क्वेश्चन लिखा रहा हूं, उनको पहले लिख लीजिए, फिल्म भी देखते रहिए, क्वेश्चन भी लिखते रहिए, और उसके बाद में जब क्वेश्चन लिखा दूंगा तब आपको फिल्म वापस दिखाऊंगा मैं, बिना क्वेश्चन मेरे, बिना कुछ बोले हुए, और फिर उस बीच में आपको उसके क्वेश्चंस के आंसर्स तैयार कर लेने हैं. आप जब क्वेश्चंस लिख रहे हो उस वक्त भी आप चाहें तो जो आंसर्स के क्लू हैं, चलिए लिखते हैं हमारे क्वेश्चंस और फिल्म देखते हैं साथ साथ में. तो पहला क्वेश्चन है, हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द मशीन्स? क्वेश्चन मार्क. नंबर 2,
Is he wearing specs? Question mark. Number 1. Question था, who is sitting in front of the machines? The right answer is Rakesh Roshan is sitting in front of the machines. Number 2. Is he wearing specs? इसका जवाब था yes, he is wearing specs. आपको याद है पिछली बार एक मजेदार फिल्म दिखाई थी मैंने आपको, उसका पहला पार्ट था वो, कौन सी फिल्म याद है ना? बच्चे वाली, नाम याद है? इट वॉज अ ब्यूटिफुल फिल्म, और उसी का लेकर हम आपको इंग्लिश के प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। तो चलिए आज देखते हैं उस फिल्म का अगला भाग, पार्ट 2। मैं क्या कर रहा हूं कि जो सीन सामने दिख रहा है एग्जैक्टली उस बात को मैं अपने सेंटेंस में कह रहा हूं। हम यही बात करते हैं, इस तरह से करते हैं, तो आपको उसको समझना है कि किस तरह से कहां पर प्लेस होता है एक स्पेसिफिक वर्ड और किस तरह से एक सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन होता है। अगर आप ये समझ पाएंगे तो बहुत तेजी से इंग्लिश सीख पाएंगे, ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं उस फिल्म का पार्ट 2। एवरीबडी इज हैप्पी। सब लोग चूंकि टाइम पे पहुंच गए हैं, पिछली बार जो भगदड़ मची थी कि जल्दी पहुंचना है, सो एवरीबडी इज हैप्पी। अब आगे देखिए, दे आर रनिंग टूवर्ड्स द एयरप्लेन। टूवर्ड्स, उस तरफ, उस ओर, दे आर रनिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस, दे आर रनिंग टूवर्ड्स द एयरप्लेन। कल भी मैंने बताया था आपको पिछली जो क्लास में कि कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मूला क्या है? टू बी प्लस आईएनजी। टू बी को जब कॉन्जुगेट करते हैं तो आई एम, यू आर, ही शी, इट इज, वी आर, यू आर, दे आर। इसीलिए यहां पर दे आर रनिंग, आर क्या है? टू बी का बाहर गए, दे आर रनिंग टूवर्ड्स, उस तरफ, द एयरप्लेन। आगे देखिए, दे हैव बोर्डेड द प्लेन। उन्होंने बोर्डेड मतलब वहां चढ़ के अंदर बैठ जाना। दे हैव बोर्डेड द प्लेन एंड दे आर टेकिंग देयर रेस्पेक्टिव सीट्स। दे आर टेकिंग देयर क्या है? पॉसेसिव एडजेक्टिव। रेस्पेक्टिव सीट्स, रेस्पेक्टिव मतलब अपनी अपनी सीट्स, रेस्पेक्टिव सीट्स। दे हैव बोर्डेड द प्लेन। बोर्ड, ये कौन सा टेंस आया? दे हैव बोर्डेड, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दे हैव बोर्डेड द प्लेन एंड आर टेकिंग देयर रेस्पेक्टिव सीट्स। और अब वो अपनी अपनी सीट ले रहे हैं। मतलब पहला पार्ट था वो परफेक्ट में है और सेकंड पार्ट है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। रेस्पेक्टिव सीट्स, अपनी अपनी सीटें, अपने अपने स्थान। आगे देखिए, अब सीन बदल रहा है। अब हम वापस उस बच्चे के घर पहुंच रहे हैं जहां जो फैमिली है वो उस बच्चे को गलती से छोड़ आई अकेले को, बेचारे को। एंड अब उसके साथ में क्या होता है वो हम देखेंगे इस फिल्म में। अब क्या हुआ? लेट इन द मॉर्निंग, काफी देर से बच्चा उठा। लेट इन द मॉर्निंग द लिटिल बॉय गेट्स अप। अब वो साहब की नींद खुली है और अब वो उठ के और क्या करते हैं वो देखें जरा। लेट इन द मॉर्निंग द लिटिल बॉय गेट्स अप। दूसरा एक्शन आ रहा है, ओपन्स द डोर, दरवाजा खोलता है, एंड कम्स आउट। 3 एक्शंस टुगेदर, देख रहे हैं आप? लेट इन द मॉर्निंग द लिटिल बॉय गेट्स अप, opens the door and comes out। पिछली क्लास में ऐसे सेंटेंस बताया था मैंने आपको, जहां मैंने गेट्स अप के बाद भी एंड यूज किया था। वहां सिर्फ समझाने के लिए किया था आपको कि जो अगर 3 एक्शंस हैं तो पहले क्या आएगा? लेट इन द मॉर्निंग लिटिल बॉय गेट्स अप, कॉमा, opens the door and comes out। एंड शुड कम इन द लास्ट एक्शन, बिफोर द लास्ट एक्शन, ठीक है ना? तो इस तरह से अपन सेंटेंस बनाएंगे, opens the door and comes out। अब देखें कौन गौर कर रहा है? ये बॉय, लिटिल बॉय। तो बॉय क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसलिए बना गेट्स अप, ओपन्स एंड कम्स। हम जानते हैं जब थर्ड पर्सन सिंगुलर में प्रेजेंट टेंस के अंदर जब हम यूज करते हैं वर्ब को तो एस या ईएस लगाते हैं। ये याद रखें आप, फ्यूचर में और पास्ट में ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हमारे 14 क्वेश्चन है आज के। तो चलिए अब आपको हम फिल्म दिखाते हैं और फिल्म दिखाएंगे आपको 6 बार। लेकिन 6 बार देखने पर पूरा निचोड़ निकाल लीजिएगा। ये जो 14 क्वेश्चंस के जवाब जो है
करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट चाहिए और करेक्ट इंग्लिश के अंदर के जवाब चाहिए। मतलब जो फैक्ट है वो भी सही हो और इसकी जो इंग्लिश देने का जो आंसर देने का तरीका इंग्लिश में है वो भी सही हो। ठीक है ना? सो ऑल द बेस्ट, हियर गोज द फिल्म। Voltamos aqui, ó. Olhe, só falta você. Todo brasileiro, João, é muito curioso. É mesmo. E com certeza muita gente vai olhar aqui. Vai sim. Agora, o que vai acontecer? Curioso, 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 curioso. A mulher vai olhar? Curioso. A mulher vai olhar? Curioso. Primeiro curioso, primeiro curioso. Que sacanagem. Primeiro curioso, primeiro curioso, primeiro curioso, primeiro curioso. Segundo curioso, segundo curioso, segundo curioso, segundo curioso. Ai, que sacanagem, bicho. Terceiro curioso, terceiro curioso, terceiro curioso, terceiro curioso. Como são folgados. Sétimo curioso. Oitavo curioso! Oitavo curioso! Oitavo curioso! Oitavo curioso! 14º curioso! 14º curioso! 15º curioso! 15º curioso! 15º curioso! 20º curioso! 21º curioso! 21º curioso! 21º curioso! 21º curioso! Que sacanagem! 25º curioso! Mais um. 27º curioso. 27º sacanagem. 29º curioso. Vai lá. Curioso. 29º. O cara não resiste, o cara quer olhar. 30º curioso. 30º. Ai. 34º curioso. 34º curioso. 35º curioso. 35º. Sacanagem. Curioso. Ai. Curioso. Casalzinho, vai olhar, casalzinho, vai lá, companheiro, olha lá. Olha aí, curioso. Toma, curioso.